मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिसने हमें एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि आज शाम को इस तरीके से हम उसकी उपस्थिति में हाजिर हो सके। We greet you all in the sweet name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हम सब आपका नमस्कार करते हैं। I believe God is going to bless all of us during this convention. मेरा ये विश्वास है इस सभाओं के द्वारा प्रभु हमें बहुत ज्यादा आशीष देने जा रहा है। In spite of many difficulties, God made it possible for all of us to gather together like this. बहुत समस्या होने के पश्चात भी प्रभु ने हमें ऐसे इकट्ठा होने का एक मौका दिया है। As I told you before, there were instances we thought that it is not possible to have a convention like this anymore. जैसे मैंने पहले कहा, हमें ऐसे लग रहा था, हमारे सामने ऐसी परिस्थिति बन रही थी कि हमें लगा नहीं कि शायद ऐसे कन्वेंशन हम चला पाएंगे। But God has granted us one more opportunity to gather together again. लेकिन परमेश्वर ने एक और मौका हमें दिया कि हम ऐसे इकट्ठे हो सके। And definitely God is going to bless all of us. और वास्तविक तौर पर परमेश्वर हम सबको प्रत्येक को आशीष देने जा रहा है। I once again request you to be in an attitude of prayer so that God may bless you. मैं विनती करूंगा कि हम सब प्रार्थना के हालत में बैठे कि परमेश्वर हम सबको आशीष दे सके। In these meetings, I'll be speaking on the subject Jesus. इन सभाओं के द्वारा मेरा प्रचार का विषय रहेगा यीशु। Who is Jesus? यीशु कौन है? This is the big question among millions of people of India. करोड़ों भारत के करोड़ों वासियों के सामने एक सवाल है ये। And this is a question to the majority of the people of the whole world. और सारे संसार के बहुत संख्या लोगों के सामने यही प्रश्न खड़ा है। The first century saints were always emphasizing about the Godship of Jesus Christ. पहले शताब्दी के संत लोग सदैव या हमेशा यीशु मसीह के ईश्वरत्व का प्रचार कर रहे थे। They were not concerned about healing Jesus. वो चंगा करने वाले यीशु के विषय में ज्यादा महत्व नहीं They दिया। were not concerned about a comforting Jesus. तसल्ली देने वाले यीशु का उन लोग ज्यादा प्रचार नहीं कर रहे But थे। they were always emphasizing that Jesus Christ is the only God. लेकिन उन लोग का विषय मुख्य तौर पर यही था कि यीशु ही केवल परमेश्वर है। When they began to emphasize that Jesus Christ is the only God, trouble started all over. जब उन लोग इस बात को महत्व देने लगे कि यीशु ही केवल परमेश्वर है, सारे जगहों में समस्याएं उठ खड़ी हुई। In my life once I see wherever I preach that Jesus Christ is the only God, in all those places problems stood up. और मैंने भी अपने व्यक्तिगत अनुभव में देखा है कि जहां कहीं मैंने यही प्रचार किया कि केवल यीशु ही परमेश्वर है, समस्याएं खड़ी हो गई। But now the time of God has come for us to declare to the whole nation of India that Jesus Christ is the only God. अब हमारे सामने समय आ पहुंचा है कि पूरे भारत देश के सामने हम खुला प्रचार करें कि केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर है। Whether we are allowed to continue to preach or not, but whatever the opportunities God has granted to us, we should say and proclaim that Jesus Christ is the only God. आगे हमें प्रचार करने का मौका मिले या ना मिले, जो भी मौका हमें मिलेगा उसका पूरा उपयोग करते हुए हम इसका प्रचार करेंगे कि केवल यीशु ही परमेश्वर है। As the Lord gives me grace, I'll be continuing this subject all through the night meetings of these days. प्रभु जैसे अनुग्रह देगा, इन सभाओं के रात्रि समय में सब मैं इसी विषय का प्रचार करूंगा। For our meditation, let us turn to Matthew chapter 16, verse 13 to 16. आइए आज रात के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 13 से 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। Matthew chapter 16, verse 13 to 16. मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 13 से 16 वचन तक। When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremias, or one of the prophets. He said unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Yes. ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੈਸਰੀਆ ਫਿਲਿੱਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਏਲੀਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਯਰਮੀਆ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? शमयोन पतरस ने उत्तर दिता, तू जिਉਂਦੇ मसीह जिਉਂਦੇ परमेश्वर का पुत्र है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this opportunity. पिता, इस मौके के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। Let the blood of Jesus Christ be sprinkled all over this township. प्रभु यीशु मसीह का रक्त इस पूरे शहर में छिड़का जाए। And I command the angels to take charge of the
और मैं स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूं कि पूरे इस शहर का नियंत्रण हाथ में लें। And I bind the powers of darkness and God of this world to lead the minds of people free. अंधकार की सब ताकतों के और इस संसार के ईश्वर को मैं आज्ञा देता हूं कि लोगों की बुद्धि को छोड़ दे। God, let people recognize you tonight. परमेश्वर आज रात्रि लोग तेरे को पहचान सके। Father, glorify your Son in our midst tonight. पिता अपने पुत्र को हमारे बीच में महिमा कर। In Jesus' name we pray. यीशु के मधुर नाम में हम मांगते हैं, Amen. आमीन। Here we read that Jesus Christ put a question to his disciple. यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने एक सवाल खड़ा किया है। He said, what people think about me? और वो पूछ रहा है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। Jesus was going around and healing the sick people. यीशु अलग अलग जगहों में जाकर बीमारों को चंगा कर रहा He था, was casting out demon-possessed people. दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए लोगों को आजाद कर रहा था, And he was raising the dead, मरे हुओं को जीवित किया, opening the blind eyes, अंधों को आंखें दी and feeding the people with bread and many blessed things. और लोगों को रोटी खिलाई और बहुत ही आशीष लोगों को दिया। So people had different opinion about Jesus Christ. इसलिए लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के विषय में कई प्रकार की भावनाएं थी। So Jesus put a question to his disciple, what people think of me? इसलिए यीशु अपने चेलों के सामने एक सवाल पूछ रहा है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। Then they said, some people say you are a prophet. तब शिष्यों ने जवाब दिया कि वो कहते हैं कि तू एक भविष्यद्वक्ता है, And some people say you are John the Baptist. कई कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, Some people say you are Elijah. और कई लोग कहते हैं कि तू एलिया है। And so people had different opinion about Jesus Christ. लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के विषय में कई भावनाएं हैं। Similarly, the people of India are having different opinion about Jesus Christ today. इसी प्रकार हमारे देश भारत में भी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के प्रति कई अलग अलग भावनाएं। Some people think that Jesus Christ is one of the avatars. कई लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अवतारों में एक है। Some people think that Jesus Christ is the founder of Christian religion. कई लोगों का विचार है कि प्रभु यीशु मसीह ईसाई धर्म का स्थापक है। Some people think that he is a good teacher. कई लोग सोचते हैं कि वो एक अच्छा सिखाने वाला है। Some people think that he is one of the gurus. कई लोग सोचते हैं कि गुरुओं में से वो एक है। But we are here to declare who Jesus is tonight. लेकिन आज हम यहाँ पर ऐलान करना चाहते हैं कि वास्तविक तौर पर यीशु कौन है। First he put a question to the disciple to get their information, get their idea what people speak about him. यीशु ने ये सवाल चेलों से पूछा ताकि सबसे पहले वो चेलों से मालूम कर सके कि लोगों के मन में उसके प्रति भावनाएं क्या है। Then later on Jesus put a question direct to them. और उसके पश्चात लोगों की भावनाओं को जानने के पश्चात वो अपने चेलों से उनकी भावनाओं को पूछता। Then he said, what do you think of me? और चेलों से सीधा पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। Then they said, you are the Son of God. तब उन्होंने कहा कि यथार्थ में तू परमेश्वर का पुत्र है। People who follow Jesus from different angle may have different opinion about Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण किए हुए लोगों को यीशु मसीह के बारे में शायद अलग अलग भावनाएं होंगी। People who just wanted blessing, he may think that he is a God or he is an avatar, he is a guru who come to bless us. जो लोग आशीष के पीछे यीशु के पीछे चले उन लोगों के लिए यीशु शायद एक अवतार होगा या एक गुरु होगा जो आशीष केवल देता है। But we who experience Jesus are here to tell you who Jesus is. लेकिन हम जो यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करते हैं हम आपके सामने ऐलान करना चाहते हैं कि यीशु असली में कौन है। Some people think that Jesus came only about 2000 years ago, then how can he be God? कई लोग सोचते हैं यीशु तो केवल आकर 2000 साल ही हुआ तो वो परमेश्वर कैसे हो सकता है। Let us turn to the book of Micah, chapter 5, verse 2. आइए अपने ध्यान को मीका उसके 5वें अध्याय और दूसरे वचन की ओर आकर्षित करें। The book of prophecy, Micah, chapter 5, verse 2. मीका की भविष्यवाणी उसके 5वें अध्याय दूसरा वचन। But thou Bethlehem Ephrath, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be the ruler of Israel, whose going forth have been from of old, from everlasting. पर है बैतलहम अफ्राथा तू जो यहूदा दे हजारां विच छोटा है ते तो एक मेरे लिए निकलेगा जो इस्राएल विच हाकम होएगा जिहदा निकलना प्राचीन समय तो है सगों अनाद तो है।
हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन आजादी काल से होता आया है। Hallelujah. हालेलुया। I request you to trust in the blood of Jesus Christ, and only this will be revealed to you. मैं विनती करूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के रक्त पर भरोसा करके बैठे, तभी ये भेद की बात आपके सामने प्रकट होगी। God of this word is always hindering to preach this word. इस संसार का ईश्वर इस वचन का प्रचार को न होने के लिए हर प्रयास करता, Always he hinders this subject. और इस विषय को हमेशा इसके सामने वो रुकावट लाता। Healing subject, he has no problem. जब चंगाई का प्रचार हो तो उसे कोई दिक्कत नहीं, Blessing subject, there is no problem. जब आशीष का प्रचार किया जाए तो उसे कोई दिक्कत But नहीं। when the subject is taken that Jesus is God, then Satan always tries to hinder it by all means. लेकिन जब इस विषय का प्रचार हो रहा है कि केवल यीशु ही परमेश्वर है, तो इस संसार का ईश्वर शैतान प्रयास करेगा कि इस वचन का प्रचार ना हो सके। But trusting in the blood of Jesus Christ लेकिन प्रभु यीशु मसीह के रक्त पर भरोसा रखते हुए and trusting in the power of the Holy Ghost, और पवित्र आत्मा के सामर्थ पर भरोसा रखते हुए we are here to declare who is Jesus. आज रात को हम इधर ऐलान करना चाहते हैं कि यीशु असली में कौन है। Either prophet Micah says about a child that is born in Bethlehem. भविष्यद्वक्ता मीका बेथलेहम में जन्म लिए बच्चे के बारे में प्रचार कर रहा है, This incident was to take place in Bethlehem. और ये घटना बेथलेहम शहर में होना था, He has spoken much before it has taken place. और ये घटना होने के कई वर्षों पहले उसने इसकी भविष्यवाणी की। Bethlehem was a small township. बेथलेहम एक छोटा सा शहर था, We can say a small village. हम कह सकते हैं कि वो एक छोटा सा गांव है। There were many big towns in Israel at those days. उन दिनों में इसराइल में बहुत बड़े बड़े शहर In थे, other Palestine there were big townships. फलस्तीन के देश में बहुत बड़े बड़े देश But थे, Bethlehem was a small village. लेकिन उनकी तुलना में बेथलेहम एक छोटा सा गांव है। But prophet through the Spirit of God saw what's going to happen in that small village. लेकिन भविष्यद्वक्ता आत्मा में देख लिया कि उस छोटे से गांव में क्या होने जा रहा। What prophet says? भविष्यद्वक्ता क्या कहता? Oh, Bethlehem is a small village. इसमें कोई शक नहीं कि बेथलेहम एक छोटा सा गांव है, But a great thing going to take place there. लेकिन उस स्थान में बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। What is that great thing? वो बड़ी घटना क्या है? Everlasting God is going to come as a man. सर्वशक्तिमान अनादिकाल परमेश्वर मनुष्य बनकर आने जा रहा है। His beginning is not from Bethlehem, उसका आरंभ बेथलेहम से नहीं है, but he is from old. लेकिन वो अनादिकाल से है, प्राचीन काल से है। Before the time started, समय के आरंभ होने के पहले से, before day started, दिन के आरंभ होने से पहले ही, before all of things started, सारे चीजों का आरंभ होने के पहले से ही he was there. वो था। He is going to be the ruler of Israel. वो इसराइल पर प्रभुता करेगा। Though he has come in a small village, वो एक छोटे से गांव में आया तो है, he is not a small वो man. एक छोटा व्यक्ति नहीं है। Who is that child that is born in the manger of Bethlehem? बेथलेहम की चरनी में जन्म लिया छोटा सा बालक कौन है? Who is he? वो कौन है? He was there even before the time started. जब समय का आरंभ होने के पहले ही वो था। He is the everlasting God. वो अनादिकाल का परमेश्वर है। I praise and thank God for that great God took a small village to be born as man on this world. मैं इस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जो इतना महान है, जो छोटे से एक गांव में आकर जन्म आरंभ किया। Some people think that Jesus is God of Safai Wala. कई लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह केवल सफाई करने वाले भंगियों का ही परमेश्वर है। Especially in northern India, some people think that Jesus Christ is the Devata of Bangis. कई लोग, खास करके उत्तर भारत में लोग के मनों में यह विचार है कि यीशु मसीह भंगियों का देवता है। I love to hear that also. और मैं ऐसी बातों को सुनना बहुत पसंद भी करता हूं। My God is a God of all people. मेरा परमेश्वर सब मानव जाति का परमेश्वर है। He did not took a big city. वो एक बड़े शहर में नहीं आया, He did not become a big town. वो बड़े शहर में नहीं आया, But he came to an unknown village called Bethlehem. लेकिन वो छोटा सा गांव बेथलेहम जिसके बारे में लोग ज्यादा जानते ही नहीं थे, उधर वो आया। When the unknown village was touched by the Almighty God, जब ये छोटा सा गांव जिसको कोई नहीं जानता था, उस पर परमेश्वर का जब स्पर्श हुआ,
the greatest people of the world go and come and kiss the land of Bethlehem. दुनिया के सबसे महान लोग भी उस छोटे से गांव में आज जाकर उसकी भूमि को चूमते हैं। They kneel down and kiss that land. घुटना टेककर उधर की मिट्टी को वो चूमते हैं। It was a small township. वो एक छोटा सा गांव था, But when it was visited by the Almighty God, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब आप ही उस गांव में आया, that has become the biggest place in the whole world. पूरे विश्व में, पूरे संसार में सबसे बड़ा जगह बन गया। And you may be a small man tonight. प्यारे मित्रों, आज रात आप शायद एक छोटे से व्यक्ति होंगे You may be the smallest person of this town. और आप इस शहर के बहुत ही छोटे से व्यक्ति होंगे। You may be an uneducated man. आप शायद अनपढ़ होंगे, You may be a weak man. आप शायद बलहीन या You कमजोर are होंगे, having a house. आपका शायद अपना घर ना You होगा, may not have a job. आपको शायद एक नौकरी ना हो, You may not have any friends to support you. शायद आपका कोई दोस्त भी ना हो जो आपको You may मदद be कर सके। sleeping on the roadside. आप शायद सड़क के किनारे सोते होंगे, There may not be a person to give you a cup of water. शायद आपको एक गिलास पानी पिलाने के लिए कोई भी ना हो, But even then, लेकिन फिर भी if you are visited by this Most High God, अगर आपके जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक दर्शन दे, then you will be the highest man in the world. तब आप भी संसार में सबसे महान हो जाएंगे। What you will become? आप क्या बन जाएंगे? You will become the ruler of the whole world with Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के साथ इस संसार में प्रभुता करने वाले बन जाएंगे। I praise and thank God for the word of God that is written in the book of Revelation. परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य में प्रभु का जो वचन लिखा गया उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। What Jesus says, यीशु मसीह क्या कहता है? He made us kings to rule the whole world. उसने हमें पूरे संसार में राज्य करने के लिए राजा बना Book दिया। of Daniel chapter 7 we read, दानियल की भविष्यवाणी उसके 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। He made the saints of the Most High shall take over the kingdom of the world. अति महान के संत लोग, उसके संतान लोग पूरे दुनिया भर का राज्य अपने हाथ में लेंगे And they will rule forever and ever. और वो युगानुयुग राज्य करेंगे। So you may be a small man tonight, शायद आज रात आप एक छोटे से व्यक्ति होंगे, but come and have fellowship, contact with this great God who has come as a man on this earth. लेकिन आप आकर इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो छोटा करके मनुष्य बनकर इस संसार में आया, उसके साथ अगर आपका संबंध हो, आपका जीवन वो बदलेगा। Let us turn to John chapter 1 verse 1 to 3. आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 1 से 3 तक पढ़ें। John chapter 1 verse 1 to 3. यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 1 से लेकर 3 तक। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਆ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਇਹੋ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ रची गई। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। In the beginning there was Word, आदि में वचन था and that Word was God, और वो वचन परमेश्वर था and all things were made by Him. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुई। Friends, I want to stress it once again. प्यारे मित्रों, इस बात के ऊपर मैं और थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। In the beginning, आदि में, that means before anything existed. यानी कोई भी चीज इस संसार में नहीं थी, सब चीजों के शुरू में The Word was there, वचन था and that Word was God, और वही वचन परमेश्वर था and everything was created by that Word. और सब चीजों की सृष्टि इस वचन के द्वारा ही हुई। And what was that Word? और ये वचन कौन था? Read verse 14. उसी अध्याय के 14वां पद को पढ़ें। John chapter 1 verse 14. यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 14वां वचन। And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ।
अते असा उसका तेज पिता दे इकलौते दे तेज वर्गा दिठा। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। In the beginning there was word. आदि में वचन था। That word created everything. उस वचन ने सब चीजों को उत्पन्न किया। That word created the heavens. उसी वचन ने आसमान या स्वर्ग की रचना की। That word created the sun and moon. और उसी वचन ने सूरज और चांद को बनाया। That word created the mountains. और उसी वचन ने पहाड़ों को बनाया। That word created the whole universe. और उसी वचन ने सारे ब्रह्मांड को बनाया। Later on, what that word did? लेकिन कुछ समय के बाद ये वचन ने क्या किया? That word became flesh. यही वचन देहधारी हुआ। The word that was in the beginning. यही वचन जो आदि में था। The word that created the whole thing. यही वचन जिसने सब चीजों को उत्पन्न किया। That word became flesh. वही वचन देह धारण किया है। Who came into the Bethlehem small village? ये बैतलहम के छोटे से गांव में कौन आया है? The word has come down. यही वचन आ गया है। The word that was in the beginning. आदि में जो वचन था, That word came to that small village Bethlehem. यही वचन उस छोटे से गांव बैतलहम में आया है। People of this Fatehgarh Chudia. फतेहगढ़ चूड़िया के निवासियों, Who is Jesus? यीशु कौन है? He is the Lord. वही केवल एक है। Who is the Word? वही वचन है। He is the Word. वही वचन है। And everything was created by Him. और सबकी रचना उत्पन्न उसी में से हुई है। And about 2000 years ago, और लगभग 2000 साल पहले that Word वही वचन put on the human flesh मनुष्य का ये शरीर रूप धारण किया, and came as man. मनुष्य बनकर इस संसार में आया। When that Word put on the human flesh, जब इस वचन ने मनुष्य का चमड़ा धारण किया, then his quality or his power or his omnipotence, nothing decreased. और जब वो मनुष्य बनकर इस संसार में आया, उसका सामर्थ, उसका महिमा और उसका सर्वशक्तिमान का जो खूबियां हैं, कुछ भी कम नहीं हुई। Loving you and me, he became flesh. आपको और मुझे प्यार करते हुए उसने मनुष्य का रूप धारण किया। Friends, who is Jesus? प्यारे मित्रों, यीशु कौन है? He is the Word. वही वचन है And he is God. और वही परमेश्वर है। And he came as man on this earth. और वही मनुष्य बनकर इस संसार में उतर आया। Let us go to the book of creation. आइए उत्पत्ति के पुस्तक में हम जाएं There we find about the creation. और वहां पर उत्पत्ति का विषय हम देखते I हैं। praise and thank God for the word of God, the Bible. मैं परमेश्वर का वचन बाइबल के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। This book contains 66 books. यही वचन, परमेश्वर का वचन में 66 किताबें हैं। And all the in this book, about 1/5 portion contains prophecy. और इस परमेश्वर के वचन में 5 में से 1 भाग भविष्यवाणियां, And some of these prophecies have already been fulfilled and became history of the world. और इन भविष्यवाणियों में से बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी हो गई और इतिहास के पन्नों में हम देखते हैं आज इतिहास का हिस्सा बन गई है। Now whatever things are happening in this world, everything is according to this word of God. आज के दिन पृथ्वी में जो कुछ हो रहा है वो सब परमेश्वर के वचन में दी गई भविष्यवाणियों के बराबर ही हो रहा है, उसके अनुसार ही हो रहा है। Everything is proceeding forward according to the unchangeable word of God. दुनिया का हर एक घटना चक्र इस परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ रहा है। About the creation, it is very clearly explained. सृष्टि के आरंभ के बारे में वचन साफ स्पष्ट तौर पर At the कहता है। beginning of man, all explanation is given. मनुष्य के आरंभ के विषय में वचन अच्छी तरह कहता है। About the beginning of different language, it is given. अलग अलग भाषाओं के आरंभ के विषय वचन अच्छी तरह कहता है। About the beginning of different tribes and castes, it is given. अलग अलग जात और कौम के बारे में उसका आरंभ भी वचन So अच्छी you तरह can कहता है। find all answer for your question from this word of God. आपके सवालों के सब जवाब परमेश्वर के वचन में आप पा सकते हैं। So in this book, what the first word says, इस परमेश्वर के वचन का सबसे पहला वचन क्या है? verse 1, chapter 1, verse 1. इस उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय का पहला वचन। In the beginning, God created the heaven and the earth.
आदि में परमेश्वर ने आकाश ते धरती ਨੂੰ उत्पन्न किया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। Here the word God, in Hebrew, the word used is Elohim. इस वचन में परमेश्वर का जो शब्द प्रयोग किया गया है इब्रानी भाषा में, उसका मूल है एलोहीम। Elohim means it is not singular, it is a plural word. एलोहीम जो शब्द है वो एक वचन नहीं है लेकिन बहुवचन है। How, when there is only one God, then how it has become a plural Elohim? जब परमेश्वर एक ही है तो इस वचन में, बहुवचन में एलोहीम वो शब्द कैसे प्रयोग किया जा रहा है? Elohim means more than one. एलोहीम जो शब्द है उसको बहुवचन में देखें तो परमेश्वर एक नहीं, एक से ज्यादा। And in some other words also, that word is explained. और कई और वचनों में इसी शब्द का प्रयोग किया गया। Chapter 1 verse 26. पहला अध्याय उसका 26वां वचन। There we find when about creating man, what word is used? What is expressed there? यहाँ भी जब मनुष्य की रचना के विषय में कहा गया है, वहाँ भी कौन सा शब्द परमेश्वर के विषय में प्रयोग किया गया, जरा देखें। And God said, "Let us make man in our image." फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। Here the word "us" is used. यहाँ पर शब्द हम करके प्रयोग किया गया। It is not a singular word, वो एक वचन मैं करके नहीं, but it is a plural word. लेकिन बहुवचन में हम प्रयोग किया गया। And when we study the word of God, और जब हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह पढ़ते हैं, in the Godhead there are three persons. ईश्वरत्व में तीन व्यक्तित्व है। One is God the Father, पहला है पिता परमेश्वर, then God the Son of God, दूसरा पुत्र परमेश्वर, then third God the Holy Spirit. तीसरा पवित्र आत्मा परमेश्वर। In the Godhead there are three personalities. ईश्वरत्व में तीन व्यक्तित्व है। One God the Father, पहला पिता परमेश्वर, then Son the God, दूसरा पुत्र जो परमेश्वर, then Holy Spirit the God. और पवित्र आत्मा परमेश्वर। You may say, how can we understand that? आप पूछेंगे हम ये इसको कैसे समझ Some सकते? of you may say it is beyond our understanding. आप में से कई बोलेंगे ये तो हमारे समझ के पार है। I want to make it very simple for you tonight. मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहता And हूँ। in the coming days I'll explain it more deeply. आने वाले दिनों में इसी बात को अच्छी तरह मैं समझाऊंगा। God, according to His eternal knowledge, knew that man will commit sin. परमेश्वर सर्वज्ञानी होने के कारण उसे पहले से ही मालूम था कि मनुष्य पाप करेगा। So if man commits sin, how to redeem him from sinful world? तो अगर मनुष्य पाप करे तो उसको पाप में से कैसे छुड़ाए? So from the Godhead, one portion became the Son of God. तो इसलिए ईश्वरत्व में से एक भाग मनुष्य का रूप धारण किया। So He came and died on the cross to pay the price of the human being. और इसलिए वो इस संसार में आकर क्रूस के ऊपर जान दिया ताकि मनुष्य जाति को पाप की गुलामी से छुड़ा सके, उसका कीमत दे Then सके। this man has to live his life on this world, और यही मनुष्य को इस संसार में अपना जीवन बिताना है। and he has to live in this world in between good and evil. और इस संसार में उसे अच्छी और बुराई के बीच में उसे अपना जीवन व्यतीत करना है। And while he is living in between good and evil, he has to prove who he is really. और जब बुराई और अच्छाई के बीच में उसने जीना है तो उसे ये बात को साबित करना है, सबूत देना है कि असली में वह है कौन। Why God created man? मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया? God has not created man so that man may keep on chanting His name 1,000 times. परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि वो हजारों बार उसका नाम जपते रहे। There are thousands of angels in heaven to worship God. स्वर्ग में सैकड़ों के हिसाब में स्वर्गदूत हैं जो उसकी स्तुति और आराधना करते With हैं। 2 wings they cover their face. दो पंखों से अपना मुंह ढांकते With हैं, 2 wings cover their feet. दो पंखों से अपने पैरों को ढांकते 2 हैं, wings they fly and say, "Holy, holy, holy." दो पंखों से उड़ते हुए वो एक दूसरे से कहते सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पवित्र पवित्र So पवित्र। God has not created man to keep on chanting His name 1,000 times a day. तो इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि वो उसका नाम हजार बार एक दिन में जपते रहे। Then why God created man? तो फिर परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? He wanted a friend, a person-like friend who can walk with him. वो एक मित्र की तलाश में था जो उसके साथ एक मित्र की तरह चल सके। That's why He created man according to His own image and likeness. इसलिए उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, But He made him out of mud, लेकिन उसे मिट्टी में से बनाया so that he may grow up and through himself overcome and became like a God. ताकि वो बढ़ सके
तौर पर चल सके। God didn't want a slave to be his friend in heaven. परमेश्वर यह नहीं चाहता था कि एक गुलाम उसका मित्र बन जाए, But he wanted a friend not just like him. लेकिन वो अपनी तरह एक मित्र को चाहता था जो उसकी तरह है। So God created man through the mud so that he may overcome and prove who he is. तो इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया ताकि वो बढ़ सके, जयवंत हो सके और ये प्रमाण दे सके कि वो असली में कौन है। He has given him all the qualities of this mud. और इस मिट्टी के सब खूबियों को इस मनुष्य को दिया। Lust of money, lust of flesh, lusted, every dirty things. और हर किस्म की बुराई की इच्छा उसके अंदर है, पैसे का इच्छा, बाकी हर किस्म की बुराई की इच्छा भावनाएं उसके अंदर है। And he has given him free will. और उसको स्वेच्छा भी दिया है। And if he wants to throw away this dirty thing, he can become like God. और चाहिए तो वह गंद को फेंक कर परमेश्वर की तरह बन सकता है। So if a man wants to become like God, तो यदि मनुष्य परमेश्वर की तरह बनना चाहे, he need a helper. उसे एक सहयोगी का जरूरत है। A portion of Godhead became the Holy Spirit, came down to this earth, इसलिए ईश्वर तुम्हें एक भाग पवित्र आत्मा बनकर इस संसार में उतरा so है that you may be led by the Holy Spirit. ताकि हमें यह पवित्र आत्मा अगुवाई कर सके। So God, in Godhead, one His Son, came down for our sins. इसलिए ईश्वर तुम्हें एक भाग मनुष्य बनकर इस संसार में आकर आया ताकि हमारे पाप का कीमत दे सके। And another person came as the Holy Spirit to help us. और उसका अगला व्यक्ति तो पवित्र आत्मा के रूप में आया ताकि हमें मदद कर सके। John says, यूहन्ना कहता है, we do not know what we shall become. हमें नहीं मालूम हम क्या बनेंगे, But one thing we know, लेकिन एक बात हमें निश्चय when मालूम He है, will appear, जब वो प्रकट होगा we will be like Him. हम उसके समान होंगे। Jesus prays this prayer, प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की, Father, just like as I am in you, हे पिता जैसे मैं तेरे तुझ में हूँ, they are also in me, वो मेरे में है and we are all in you. और हम सब तेरे में हैं। That is the mystery of God. ये परमेश्वर का एक भेद का बात। Brothers and sisters, God has a great plan about you. प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का आपके व्यक्तिगत जीवन के प्रति एक बड़ी योजना है। God has not created you to live under sin always. परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप पाप के गुलाम हमेशा रहे। God has not created you to be a slave of sickness always. परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप बीमारी के गुलाम हमेशा रहे। God has not created you to be a fearful being always. परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप भाई के अधीन गुलाम होकर हमेशा रहे। God has created you in the image of God. परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया He clothes the first man in the glory of God. और पहले आदमी को अपने महिमा से उसने ढांपा था And he was having all dominion and power. और उसके बाद सब प्रभुता और अधिकार था। But because of sin, he lost everything. लेकिन पाप के कारण वो इन सबसे खो गया, सबसे वंचित हो गया। But the word came लेकिन वचन आया and put on the human flesh, और मनुष्य का रूप धारण किया so that you and I be delivered and redeemed from this world. ताकि मैं और आपको इस पाप के गुलामी से छुटकारा दिला सके। And to give you what? और आपको क्या दें? Godship. ईश्वरत्व का एक भाव, So that you may also in eternity live like God. ताकि युगानुयुग के समय में आप भी परमेश्वर की तरह रह सके। I praise and thank God for this mighty God who has this eternal plan about you and me. मैं इस सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिसने ये योजना आपके लिए और मेरे लिए बना रखी। That's why in Revelation we read, इसलिए प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, He that overcometh will sit with me. जो जय पाएगा वो मेरे साथ बैठेगा। In the book of Daniel we read, दानियल की भविष्यवाणी में हम पढ़ते हैं, in chapter 7 we read like this, 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, there was a throne and the ancient of the days is seated there. एक सिंहासन रखा गया और युगों का प्रभु उधर पे उस पर बैठा है, आदिकाल का प्रभु उसमें बैठा है। And around there are thousands of thrones. और इस प्राचीन के आसपास सैकड़ों के हिसाब में सिंहासन रखे हैं। Who is seated there? उसके ऊपर कौन बैठे? The born again children of God who are washed with the blood of the Lamb of God are seated with God in heavenly thrones. नए सिरे से जन्म लिए हुए लोग जिसको उसने अपने खून से धोकर अपने शुद्ध किया है, उन लोग उस प्राचीन के साथ सिंहासन में बैठे हैं। And around them thousands of angels standing and ministering. और इन संतों के आसपास सैकड़ों के हिसाब में स्वर्गदूत है जो सेवा टहल कर रहे हैं। So in order to lift you up, you and me, in Godhead, we see God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. मुझे और आपको इसी ईश्वरत्व तक उठाने के लिए हम देखते हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा को हम देखते हैं। That's why the word Elohim is written. इसलिए इस वचन में शब्द बहुवचन में एलोहीम प्रयोग किया। He said this.
this? मैंने ये बात क्यों कही? Not come, or Jesus, the beginning of Jesus Christ is not where they have, but from the very beginning. मैंने बात इसलिए कही कि ये बात समझाने के लिए कि यीशु का आरंभ बेथलेहम में नहीं हुआ, वो आदिकाल से है। When Jesus was ministering, this question was raised up by Pharisees. जब यीशु सेवा कर रहा था, फरीसियों ने ये सवाल उठाया। Let us turn to John chapter 8, verse 53 to 58. आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 53 से 58 वचन तक पढ़ें। John chapter 8, verse 53 to 58. यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 53 से 58 वचन तक। Art thou greater than our father Abraham, which is dead? And the prophets are dead, whom makest thou thyself? Jesus answered, if I honor myself, my honor is nothing. It is my Father that honoreth me, of whom you say that he is your God. Yet you have not known him, but I know him. And if I should say I know him not, I shall be a liar like unto you. But I know him and keep his sayings. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Then said Jews unto him, Thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? And Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. ਭਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਨਬੀ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਅਜੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, जो अब्राहम के होने तो पहला मैं हाँ। हमारा पिता इब्राहिम तो मरा तो उससे बड़ा है, और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। और तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। और यदि कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी नाई झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मग्न था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। Hallelujah! हालेलुया। When Jesus was ministering, many people came around Jesus Christ. जब यीशु सेवा कर रहा था, बहुत बड़ी भीड़ उसके आसपास आई। Some people began to criticize about his ministry. कई लोग उसकी सेवा के विषय में उसके उल्टी सीधे सवाल उठा रहे थे। The people, the religious leaders of that time were not happy with the ministry of Jesus Christ. उस समय के धार्मिक नेताएं यीशु की सेवकाई से संतुष्ट नहीं थे। So they were always criticizing him and his ministry. वो हमेशा उसके बारे में और उसकी सेवा के बारे में गलतियां बोलते रहते थे। Then Jesus one day began to speak to them about Abraham. और एक दिन यीशु अब्राहम के विषय में उनसे बात करने लगा। Then Jesus said, Abraham was very anxiously waiting to see my days. यीशु ने कहा, अब्राहम भी मेरे इस समय को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। Then they said, you are not even 50 years old. How come you say that you are Abraham know you? लोगों ने कहा, तेरी तो उम्र 50 साल भी नहीं, फिर तू कैसे ऐसे बोलता है कि अब्राहम तेरे को जानता था? Because Abraham came thousands of years ago. क्योंकि हमारे आज के समय से हजारों साल पहले अब्राहम आया था। Then what Jesus said? तब यीशु ने जवाब दिया, Before Abraham, I was there. यीशु ने जवाब दिया, अब्राहम जो था उससे पहले से मैं हूँ। Friends of Fatehgarh, फतेहगढ़ के मेरे मित्रों, friends of India, भारत के मेरे मित्रों, the beginning of Jesus is now.
बेतलहम नहीं है। The beginning of Jesus is not just 2000 years ago, यीशु का आरंभ 2000 साल पहले नहीं हुआ, but He is the Word. लेकिन वही वचन है, He is the Elohim. वही एलोहिम है, He is the Creator. वही सृष्टि करता है, He is the Creator of the whole human being. वो सारे मानव जाति का सृष्टि करता है। Jesus Himself said, यीशु ने स्वयं कहा, I said what prophet said earlier, मैंने तो पहले कहा, भविष्यद्वक्ताओं ने पहले क्या कहा, but Jesus Himself said, लेकिन यीशु ने स्वयं कई बातें कही। I was there even before Abraham. अब्राहम के होने से पहले ही मैं था। Is there anyone ever claimed such kind of thing in the whole universe? क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा है जिसने कभी ऐसा एक दावा किया हो? I respect all avatars. मैं सब अवतारों को आदर करता हूँ, I respect all gurus. मैं सब गुरुओं को आदर करता I हूँ, respect all prophets. और सब भविष्यद्वक्ता नबियों को आदर करता I हूँ। honor their teachings. मैं उनके शिक्षाओं को आदर करता हूँ। Many of them gave their lives as a sacrifice. कईयों ने अपने जीवन को बलिदान के तौर पर दिया। Many of them offered their life for the betterment of the people of the world. लोगों की भलाई के लिए कईयों ने अपना जान दे दिया, But none of them ever claimed that they were before they came to this world as man. लेकिन उनमें से किसी ने भी यह दावा नहीं किया कि मनुष्य बनकर आने के पहले से ही वो है। Hallelujah. हालेलुया। Only one person said, even before Abraham, I was there. केवल एक ही ने दावे से कहा, अब्राहम के होने से पहले ही मैं था। Hallelujah. हालेलुया। Who is Jesus? यीशु कौन है? Jesus is not one of the avatars. यीशु अवतारों में एक नहीं। You cannot compare Jesus with 33 crores. अब यीशु की तुलना 33 करोड़ से नहीं कर सकते। You cannot compare Jesus with any prophets. आप नबियों के किसी के साथ यीशु की तुलना नहीं कर You सकते। cannot compare Jesus with any avatars. आप किसी अवतारों के साथ यीशु की तुलना नहीं कर You सकते। cannot compare Jesus with any teacher. आप किसी शिक्षकों के साथ यीशु की तुलना नहीं कर सकते। They are all good people. वे सब अच्छे लोग हैं, But they were all human beings. लेकिन वो सब मनुष्य थे। Their life began on this earth. उनका जीवन का आरंभ इस पृथ्वी में हुआ। They have started from this world. उनका आरंभ इस पृथ्वी से हुआ। They have begun from this world. उनका शुरुआत इस पृथ्वी से हुआ। But there is one लेकिन केवल एक है, whose beginning is not from this world. उसका आरंभ इस पृथ्वी में से नहीं हुआ, But his beginning was from beyond all these things. उसका आरंभ इन सब पहले से ही है। I am so glad to have association with this person whose beginning is from beyond the whole beginning. मैं कितना खुश हूँ, मेरा व्यक्तिगत संबंध इसके साथ है जिसका आरंभ इन सब चीजों के पहले से ही। With whom you have a relationship tonight? आपका यथार्थ में संबंध आज रात को किसके साथ है? Can you boldly say, my relationship is with that person who is the beginning? क्या आप दिलेरी से कह सकते हैं मेरा व्यक्तिगत संबंध उसके साथ है जिसका आरंभ इन सब चीजों के पहले से ही है? I praise and thank God. Jesus said, even before Abraham, I was there. इस प्रभु का धन्यवाद देता हूँ जो दावे के साथ कहता है अब्राहम के होने के पहले से ही मैं था। There are so many other words which I may share tomorrow. कई और वचन हैं जिनको मैं कल आपके साथ बांटूंगा। But let us turn to Colossians chapter 1 verse 15 to 17. आइए कोलोसी उसका पहला अध्याय उसका 15 से 17 तक पढ़ें। Colossians chapter 1 verse 15 to 17. कोलोसी की पत्री पहला अध्याय 15 से 17 तक। Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by him were all things created, that are in heaven and that are in the earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. And he is before all things, and by him all things consist. ਉਹ ਅਲੱਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ।
ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। With all love, I would like to read one more scripture to you. पूरे प्यार के साथ एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। When I read the scripture, I read it with all humility and compassion. पूरी विनम्रता के साथ और दया के साथ मैं इस वचन को पढ़ता हूँ। Isaiah chapter 1 verse 2 and 3. यशायाह पहला अध्याय उसका 2 और 3 वचन। Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord hath spoken. I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. The ox knoweth his honor, and the ass his master's crave. But Israel doth not know, my people doth not consider. हे आकाश सुन ਅਤੇ हे ਧਰਤੀ ਕੰਨ ਲਾ, ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਪਰ ਉਹ ਮੇਥੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਰਾਇਲ नहीं जानती, मेरी प्रजा नहीं सोचती। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। Friends, with all love, I would like to speak to you tonight. प्यारे मित्रों, पूरे प्यार के साथ आज रात मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। When I speak these words, how much I love you, the Lord God only knows it. जब मैं इन वचनों का प्रचार कर रहा हूँ, मैं आपको कितना प्यार करता हूँ, उस प्यार को केवल परमेश्वर ही अच्छी तरह समझ पा सकता है। Sitting in that small room, praying and crying for you, I'm speaking from here. इधर आने के पहले कमरे में बैठकर आपके लिए बहुत आंसू बहाने के पश्चात मैं इधर आकर आपसे वचन प्रचार कर रहा हूँ। To the people of Fatehgarh Chudia and the people who are listening me, I want to put a straight question to you tonight. फतेहगढ़ चूड़िया के निवासियों और जो कोई मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Friend, have you recognized your Creator? प्यारे मित्र, क्या आपने अपने सृष्टिकर्ता को पहचान लिया है? Here the word of God says, the ox knows its owner. यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, बैल अपने मालिक को पहचानता है। An ordinary animal knows his owner. साधारण जानवर अपने मालिक को पहचानता है। As we call it when a person is very foolish or having no mind, then we call him an ass. कोई व्यक्ति जिसको ज्यादा दिमाग नहीं है, उसको हम आम तौर पर गधे का नाम बुलाते हैं। Even the ass knows his master's crave. ये इतना गधा जिसको इतना दिमाग भी नहीं है, वो भी अपने मालिक की चरनी को पहचानता है। From where the master gives him order, he recognizes that place and he knows it. उसे मालूम है मेरा मालिक मुझे कहाँ खाना डालता है और उस चरनी को वो अच्छी तरह पहचानता है। Friend, even when the ass also knows his honor. Do you know who is your honor? प्यारे मित्र, जब गधा भी अपने मालिक को पहचानता है, क्या आप अपने मालिक को पहचानते हैं? It's true, you walk down here and there and earn all what you need. यह सच है कि आप हर जगह माथा टेकते हैं और जो कुछ कमाया जा सकता है वो सबको कमाने का प्रयास करते हैं। By going down here and there, your business is flourishing. इधर उधर माथा टेकने के कारण आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। By offering all kinds of gifts, you are prospering materially. हर प्रकार का दान चढ़ाने के कारण शारीरिक तौर पर आप बहुत उन्नति कर रहे हैं। And you have become an influential person by going down in every place. और हर जगह माथा टेकने के कारण समाज में आपका एक अच्छा नाम है।
It's all good. ये सब अच्छा है, But to your heart, I put this question straight. लेकिन आपके हृदय से मैं ये सवाल सीधा पूछता हूं, Have you recognized your Creator? क्या आपने अपने सृष्टिकर्ता को पहचान लिया है? Friend, a day is coming, you have to leave this world. प्यारे मित्र, वो दिन आ रहा है जब आपको ये संसार छोड़कर जाना। How many great people lived on this earth? इस पृथ्वी में कितने महान लोग रह चुके, In this Fatehgarh Chudia, how many great people lived? इस फतेहगढ़ चूड़िया में कितने महान लोग आ चुके, जी चुके, How many rich people lived? कितने धनी लोग इधर रह चुके, How many healthy people lived? कितने तंदुरुस्त लोग इधर रह चुके, How many influential people lived in this very town? कितने प्रभावशाली लोग इस शहर में रह चुके। Where are they today? वो आज कहाँ गए? When the death knocked their door, they're finished. जब मौत ने उनके दरवाजे पर खटखटाया, उनका अंत हो गया। Friend, your turn is also coming. प्यारे मित्र, आपकी बारी भी आ रही है। The death one day will knock the door of your life. मौत भी आपके जीवन के दरवाजे पर एक दिन खटखटाएगा, And afterwards you will have no chance to know your Creator. और उसके पश्चात अपने सृष्टिकर्ता को पहचानने का मौका कभी नहीं मिलेगा। You will be compelled to kneel down before your Creator. और फिर अपने सृष्टिकर्ता के सामने आपको जबरदस्ती घुटना टेकना पड़ेगा, And then after that you'll beat your chest and cry, go to hellfire. और उसके पश्चात छाती पीटते हुए नरक की आग में आपको समय बिताना पड़ेगा। Today is your time to know your Creator. आज ये समय है कि आप अपने सृष्टिकर्ता को पहचान लें। People of Fatehgarh, today is your day to know your Creator. फतेहगढ़ के निवासियों, आज वो दिन है जब आप अपने सृष्टिकर्ता को पहचान सकते हैं। Who is your Creator? आपका सृष्टिकर्ता कौन है? Here the word says in Colossians chapter 1. कोलोसी पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, I will read it once again. मैं एक बार और पढ़ता हूं, 15 and 16. 15 और 16 वचन। Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature? For by him were all things were created, that are in heaven and that are in the earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him. And he is before all things, and by him all things consist. वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। Here it is written, for by him are all things created. और यहाँ पर लिखा है कि उसी के द्वारा सब चीजें सृष्टि की गई। The things in heaven was created by him. स्वर्ग के सब चीजें उसी के द्वारा सृष्टि की गई। Things on this earth was created by him. पृथ्वी की सब चीजें उसी के द्वारा सृष्टि की The गई। things under the earth was created by him. और पृथ्वी के नीचे की सब वस्तुएं उसी के द्वारा सृष्टि की All the visible things were created by him. सब देखी चीजें उसी के द्वारा सृष्टि की गई। All invisible things are created by him. सब अनदेखी वस्तुएं भी उसी के द्वारा सृष्टि की गई। Who is Jesus? यीशु कौन है? Believer, विश्वासी, do you know who is Jesus? क्या आप जानते हैं यीशु कौन है? You know only this much. आप सिर्फ इतना ही जानते हैं, Jesus washes my sin. यीशु मेरे पापों को धोता Jesus heals my और sickness. मेरे बीमारी को चंगा करता। Jesus takes me to heaven. यीशु मुझे स्वर्ग ले जाएगा। This only your knowledge. आपको सिर्फ इतना ही मालूम है। When Satan brings some sickness to you, जब शैतान कोई बीमारी आपके सामने लाता है get frightened. और आप डर जाते हैं Now run here and there. और इधर उधर भागना शुरू करते हैं, When small problem comes, और जब जीवन में छोटी सी समस्या आती है you get all kinds of confusion. और आपके जीवन में बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। Why? क्यों? You do not know who is Jesus. आपको यथार्थ में मालूम नहीं कि यीशु वास्तविक You तौर do पर not कौन know who है। is Jesus. आपको यथार्थ में मालूम नहीं कि यीशु असली में Believer, you कौन do है। not know who is Jesus. हे विश्वासी, आपको मालूम नहीं है कि You यीशु know कौन है। only Jesus washes your sin. आपको केवल इतना मालूम है यीशु मेरे पापों से मुझे You धोता। know Jesus heals your sickness. आपको इतना ही मालूम है कि यीशु बीमारी से You चला। know only Jesus comes to take you to heaven. आपको इतना ही मालूम है कि यीशु आ रहा है मुझे ले जाने। But if you know Jesus, लेकिन यथार्थ में जब यीशु को अच्छी तरह आप जान you लेंगे, are not going to be moved at all in any
When you know that, जब आपको ये बात मालूम चलेगा, then at every problem, तब हर समस्या के सामने, whatever be the problem, चाहे कैसी भी समस्या, know your Creator. आप अपने सृष्टिकर्ता को अच्छी तरह You जानते know हैं, the truth, आपको सच्चाई मालूम है, and the not truth shall set you free. और सच्चाई आपको आजाद करेगा। Why many pastors are under captivity? क्यों कई पासवान आज गुलामी में है? Why many pastors are under captivity? आज क्यों कई पासवान गुलामी के हालत में गुलाम है? Why many pastors are under captivity today? क्यों कई पासवान आज गुलाम है? आज रात के समय पासवानों से एक सवाल सीधा पूछा, Pastors are frightened. पासवान लोग भयभीत क्यों है? Why are frightened? आज पासवान लोग भयभीत क्यों है? Take your mind and come. When sickness comes, why are frightened? जब बीमारी आपके जीवन में आती है, डर क्यों लगता है? When money problem comes, why are जब frightened? पैसे की दिक्कत आती है तो डर क्यों लगता है? When the government turns against you, why are frightened? सरकार आपके विरोध खड़ी होती है तो डर क्यों You लगता है? do not know Jesus. आप यीशु को अच्छी तरह जानते नहीं। You do not know who is Jesus. आपको मालूम नहीं यीशु कौन है? If you know Jesus, अगर आप यीशु को जानेंगे, if you know Jesus, अगर आप यीशु को जानेंगे, if you know Jesus, अगर आप यीशु को जानेंगे तो you will face every problem. आप हर एक समस्या का सामना करेंगे। No problem is about Jesus. कोई भी समस्या यीशु से ऊपर नहीं है। No problem about Jesus. यीशु से ऊपर कोई समस्या नहीं। No government about Jesus. सरकार यीशु से ऊपर नहीं No है। government about Jesus. कोई सरकार यीशु के ऊपर नहीं है। Why people are frightened? आज लोग डरे हुए क्यों हैं? Yes, small sickness enough. तो छोटी सी बीमारी काफी है, Oh, everything gone. सारा दुनिया ऊपर नीचे हो जाता, All hope gone. सारी आशा खत्म। Why? क्यों? You do not know your Jesus. आपको अपने यीशु को अच्छी तरह जाना नहीं है। When police just makes one small noise, जब पुलिस थोड़ी सी आवाज करती है, when police just moves its tails, और जब पुलिस थोड़ा सा हिलना शुरू करती है, moves its tails, जब अपना दुम थोड़ा सा हिलाती है, frightened, एकदम कंपकटी शुरू हो जाता है, frightened. एकदम डर जाते हैं। Why? क्यों? You do not know your Creator. आपको अपने सृष्टिकर्ता को अभी तक आप You do not know who is Jesus. आप जानते नहीं यीशु कौन है। You do not know who is Jesus. आपको मालूम नहीं अभी तक यीशु कौन है। Everything is by Him and for Him. सब चीजें उसी के द्वारा और उसी के लिए है। All principalities by Him. सब प्रभुता उसी के द्वारा है। Things visible and invisible. देखिए या अनदेखी हो, Why first century saints were able to turn the world upside down? पहली शताब्दी के संत लोग अपने समय की दुनिया को ऊपर नीचे उलट पुलट क्यों कर पाए? Because they knew that Jesus. क्योंकि वो अपने यीशु को अच्छी तरह जानते थे। They knew that Jesus. वो अपने यीशु को अच्छी तरह जानते थे। They knew who is Jesus. उन्हें मालूम था यीशु कौन है। Pastor, do you know who is your Jesus? हे पासवान, क्या आप जानते हो आपका यीशु कौन है? You know your Jesus. क्या आप जानते हो आपका यीशु कौन है? When your wife cries, you also cry. जब आपकी पत्नी रोती है, आप भी रोते हो। Do you know your Jesus? क्या आप अपने यीशु को जानते हो? Pastors. पासवान, First of all, you know Jesus first. सबसे पहले आप यीशु को जानने का प्रयास करें। First, you know Jesus. सबसे पहले अपने यीशु को जानने का प्रयास करें। Then believers will know Jesus. सब आपके विश्वासी यीशु को जानेंगे। Who is Jesus? यीशु कौन है? Who is Jesus? यीशु कौन है? Who is Jesus? यीशु कौन है? He is not one of the avatars. अवतारों में से एक नहीं। He is not lying in somewhere on some tombs. वो किसी कब्र में आज भी पड़ा नहीं है। His body not decayed. उसका शरीर सड़ा नहीं। Roman Empire could not hold it. रोमी साम्राज्य उसको रोक नहीं सका। The greatest empire of that time was Roman Empire. युग का सबसे बड़ा साम्राज्य उसे रोक नहीं सका। The greatest empire of that time was Rome. और उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य रोम था। They could not stop it. वो उसे रोक नहीं सके। They could not stop it. वो उसे रोक नहीं सके। That is my Jesus. वो है मेरा यीशु। That is my Jesus. वही मेरा यीशु। That is my Jesus. वही मेरा यीशु। I preach that Jesus. मैं उस यीशु का प्रचार कर रहा I हूं। preach that Jesus. मैं उस यीशु का I प्रचार am not preaching an avatar. हम किसी अवतार का प्रचार नहीं। I am not preaching about 33 course of God's and goddess. मैं 35 करोड़ देवी देवताओं
Let things in the earth, चाहे पृथ्वी की बातें हो, let things under the earth. और पृथ्वी के नीचे की Kneel down and pray. घुटना टेक प्रार्थना आरंभ। Ask God, प्रभु से पूछे, Lord, हे प्रभु grant me grace मुझे अनुग्रह दे to know you. तेरे को जानने के लिए। Well, Lord, हे प्रभु grant me grace मुझे अनुग्रह दे that I may know you. ताकि मैं तुझे अच्छी तरह जान। Lord, हे प्रभु grant me grace मुझे अनुग्रह दे to know you. ताकि मैं तुझे जान सकूं। हे प्रभु Grant me grace मुझे अनुग्रह दे to know you. मैं तुझे जान सकूं। हे प्रभु Grant me grace मुझे अनुग्रह दे to know you. ताकि मैं तुझे जान। हे प्रभु Grant me grace मुझे अनुग्रह to दे know you. ताकि मैं तुझे जान। Problems are going to come. समस्याएं आने वाले दिनों में आ रही हैं। God
अच्छी तरह Know your friend Jesus Christ. अपने मित्र यीशु को अच्छी तरह जाने, Know your person who loves you. जो उस व्यक्ति को जाने जो आपको प्यार करता है, Know the person who gave his blood for you. जिस व्यक्ति ने आपके लिए अपना खून बहा दिया उसे अच्छी तरह जाने, Know that person who gave his blood for you. उस व्यक्ति को अच्छी तरह जाने जिसने अपना पूरा खून आपके लिए दे दिया। Sisters, know that person who gave his blood for you. मेरी बहन, जिसने अपना पूरा शरीर का खून आखिरी बूंद तक आपके लिए दे दिया, उसको जरा जाने। Know the drop of blood was left in his body when he was hanging on the cross. क्रूस में लटकते समय एक बूंद खून भी उसके शरीर के अंदर बाकी नहीं बचा था। Finally, when the pierced his side, only water came out. जब भाला लेकर उसको पसली को छेड़ा है, पानी निकल कर आया। Blood for me. उसे अपने शरीर का सारा आखिरी बूंद खून दे, आखिरी में ये हो गया। He gave all his blood for you. अपना सारा खून मेरे लिए और आपके लिए उसने बहा दिया। He gave all blood for you. Will you not help me when you are in trouble? जब उसे अपना आखिरी बूंद खून भी मेरे लिए और आपके लिए जब दे दिया है, क्या आपकी समस्या के समय क्या वो मदद नहीं करेगा? When he gave all his blood, will he not help you when you are in sickness? जब उसने अपना आखिरी बूंद खून भी रख नहीं छोड़ा, क्या वो आपको जब बीमारी आती है, क्या वो आपको छोड़ देगा? Paul says, I have one desire. पौलुस कहता है, मेरी एक तमन्ना है, I count all things are garbage. मैं सब बातों को कूड़ा समझता। I have one desire. मेरी एक ही तमन्ना है, I must know him. मैं उसे जानूं, I want to know him. मैं उसे जानना चाहता हूँ। I want to know my Jesus. मैं अपने यीशु को जानना चाहता हूँ। Sister, what is your desire today? यार बहन, आपके हृदय की इच्छा आज इस समय क्या है? Pastors, what is your desire today? प्रभु के दास, आपके हृदय की इच्छा आज इस समय क्या है? My desire may be for a big church. शायद एक बड़ी कलीसिया की इच्छा होगी, Your desire may be for a good welcome income. आपकी इच्छा शायद एक अच्छी कमाई की होगी। Is there anyone who has a desire? I want to know Jesus. क्या यहाँ पर कोई एक भी है जो उसके अंदर जिसके अंदर एक इच्छा है, मैं यीशु को जानना चाहता हूँ, I want to know him. मैं केवल उसे ही जानना चाहता हूँ, I want to know him. मैं उसे जानना चाहता हूँ। Let us close our eyes in prayer. आइए सिर झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। Father, I thank you for your word. पिता, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Father, I pray that your word may continue to work in every heart. पिता, मैं विनती करता हूँ कि यही तेरा वचन एक एक हृदय में काम करे। Father, in this days, help us to know you more. पिता, इन दिनों में हम तुझे और भी जानने के लिए तू हमें सहायता कर। Thank you, Jesus. पिता, तेरा धन्यवाद देते प्रभु यीशु। Thank you, Jesus. प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद देते। Thank you, Jesus. प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद देते। We love you, Lord. प्रभु, हम तुझे प्यार करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के मधुर नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Now the servant of God will pray and close the meeting, and afterwards Pastor Pradeep Samuel will explain about the programs tomorrow and other things. और प्रभु के दास आगे आकर प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे। उसके पश्चात प्रभु के दास प्रदीप सामुएल आगे आकर कल का प्रोग्राम और सब विषय में हमसे बात करेंगे। Remember, tomorrow 8:30 Bible class for pastors and their wives and elders and all believers who have gathered together. The Bible class will be good for you in the morning. जो ना भूले, कल सुबह 8:30 बजे ठीक सुबह का बाइबल क्लास सबके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हाँ आज दे इस वचन दे ਲਈ। आज दे इस वचन दे ਲਈ प्रभु ये वचन जिन्हें लोगों ने सुनिया है, एक एक दे अंदर ये वचन, एक एक दे दिल दे अंदर ये वचन बड़ा गहराई दे नाल काम करे। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र प्रभु जी। बाकी दिनों दी सभावां दे विच भी जिस तरह आज इस वार्षिक सम्मेलन दी पहली सभा दे विच कितना बड़ा आत्मा का काम होया, इसी तरह बाकी दिनों दी सभावां विच भी आत्मा का बहुत बड़ा काम हो गई। तेरा पवित्र नाम महिमा ते जलाल पावे। लोग जान लें कि तू कौन है
तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम में, आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर पिता का प्रेम ते पवित्र आत्मा की संगत साडे नाल ते इस जमीन के सारे ईमानदार लोगों के नाल यीशु मसीह दूसरी आमद तक हुंदा रहे, आमीन।